الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیت ہے، خداوند عالم نے ولایت کو بیان کیا اور اسی میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے نام و نشان کی بقا کے لیے اور ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ زندگی میں شاید اس کا اتنا پھل اور اس کا فائدہ ہمیں دکھائی نہ دے، اگرچہ جو سچے مومن ہیں انہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ دکھائی دیتا ہے، مگر آخرت میں ضرور اس کا فائدہ انسان کو ملے گا جو مومن ہے۔ اور جنہوں نے ولایت علی کو نہیں ایکسیپٹ کیا اور نہیں مانا اس دنیا میں، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس دنیا میں کتنا بڑا فائدہ کھویا ہے، کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اس لیے کہ قیامت، حساب و کتاب، اعمال نامہ، جنت، جہنم، برزخ، پل صراط اور بہت سی منزلیں آنے والی ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، اگرچہ موت کے ٹائم میں بھی کہا گیا ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب کام آتی ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کا جو رابطہ ہوتا ہے اور انسان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ قبر سے ہوتا ہے۔ اب یہاں جو قبر کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ تو جلا دیے جاتے ہیں، بہت سے دریا میں غائب ہو جاتے ہیں، بہت سے گوڑی کا پتہ نہیں چلتا، تو ان کا کیا؟ وہ سب آتے ہیں اسی میں۔ قبر کا مطلب یعنی اس کی جو آخری رسومات ہیں، جس مذہب کے اعتبار سے، جس فرقے کے اعتبار سے، وہ ختم ہونے کے بعد۔ لیکن چونکہ اسلام میں قبر کا تصور ہے، اس لیے تمام حدیثوں میں قبر کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ولایت علی یتساءلون عنہا فی قبورہم، قبر میں جہاں بہت سے سوالات ہوں گے، جاتے ہی پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ انسان اس دنیا میں شاید سوچتا ہے، یا جب ہم بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہم خود بھی، تو ہم سوچتے ہیں یہ تو کتابی باتیں ہیں۔ نہیں، یہ سچائی ہے، ایسا ہوگا، چاہے ہم اسے اس دنیا میں بلیو کریں یا نہ کریں، چاہے ہم اس کے اکارڈنگ عمل کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہوگا۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں تمام انسانوں سے ان کی قبر کے اندر سوال ہوگا، اس میں پوچھا جائے گا۔ ولایت علی یتساءلون عنہا، سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، فی قبور، ہر انسان کی قبر میں پوچھا جائے، یہ نہیں ہے کسی ایک کی،
कि साहब इधर के लोग छोड़ दिए जाएंगे, नमाजी छोड़ दिए जाएंगे, मौलवी छोड़ दिए जाएंगे, हाजी छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सबसे पूछा जाए। अच्छा एक चीज़ भी होती है, इंसान हम ये कहेंगे, हम तो खुल के बोलेंगे, हाँ हमारा इमाम अली ने भी तारीफ, कब्र में जब तलकीन पढ़ते हैं तब भी कहा जाता है ना, इदा अताकल मलकान मुकर्रबान, इदा अताकल मलकान मुकर्रबान, खुदावंद आलम की तरफ से आएंगे तुम्हारे पास या रसूलैन, ये भी इस्तेमाल में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फ़कुल फी जवाब है माँ, उनके जवाब में क्या कहना, अल्लाह हो जल्ला जलालहु रब्बी व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व नबी वल इस्लाम दीनी वल कुरान किताबी वल काबतु क़िबलती व अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इमामी। ये आता है सिलसिला आगे। अब इंसान सोचेंगे हमें तो यहाँ पढ़ा दिया गया है, जैसे ही फरिश्ते पूछेंगे विलायत अली के बारे में हम फौरन बोलेंगे कि हमारे वली कौन है, हमारे मौला अली है। नहीं, यहाँ हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं बोलने में कि हम वली मानते हैं, मौला मानते हैं, आका मानते हैं, वहाँ नहीं होगा। अगर सच्चाई में वली मानता है तो ही जबान से निकलेगा, और अगर सच्चे में और रियल में नहीं मानता है, हकीकत में नहीं मानता और खाली कहता है बस जवाब दे दूंगा, तो ये यहाँ दुनिया के एग्जाम नहीं है कि यहाँ चीट किया जाएगा। उन्हें मालूम है, क्योंकि विलायत अली सिर्फ जबान से नहीं बोलेगी, आमान से भी बोलेगी, आंखों नाक से भी बोलेगी, कानों से भी बोलेगी, हाथ और पैरों से भी बोलेगी विलायत अली। तो कब्र में पूछा जाएगा जो सवाल होगा बहुत से, हम तलकीन में इसीलिए जो सुनाते हैं उसे मरने वाले को। अगरचे ये होता है कि जब आदमी जिंदा रह के हमारी बात नहीं सुनता, हमारी का मतलब यानी दीन की, तो मरने के बाद क्या सुनेगा, लेकिन वहां से तो भाग नहीं सकता। यहाँ मजलिस में आपकी मर्जी आए है ना, खुतबा जुमा का होता है, आए है ना, सुने है ना सुने, मौलवी को होता है ना। मैं बहुत से देखता हूँ, 6 महीने हो गए मुझे, पिछले बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने खुतबे में देखा ही नहीं है, जुमा पढ़ते हैं बट खुतबे में नहीं। अभी कब्र में तो नहीं भागने वाला, वहां तो सुनना ही है उसे, कौन पड़ेगा तकलीफ, और वहां बताएंगे कि ये होगा, तो यहाँ भी सुन लिया करो ताकि वहां भी आसान हो जाए। तो अब पूछा जाएगा कब्र में, हर एक से पूछा जाएगा, बताओ विलायत अली इब्न अबी तालिब के बारे में। विलायत का मतलब तुम इमाम मानते थे उसे नहीं मानते थे, अली की इमामत के कायल थे या नहीं कायल थे, अकीदा था नहीं इमाम की, इमाम अली की विलायत के ऊपर इमामत को। विलायत मतलब इमामत, विलायत मतलब रहबरी, विलायत मतलब मैंने शुरू में अर्ज किया था। तो पूछा जाएगा विलायत के बारे में कब्र के अंदर। अब वहां से कहाँ भागेगा इंसान, यहाँ पूछते ना कि सुबह इधर आ, इधर हाँ जी शर्मा दूरी में आ जाता है, बोले जी नमाज नहीं पढ़ता आऊँगा, उसके बाद आया ना, मर्जी उसकी। अभी बोलेंगे मजलिस में क्यों नहीं आऊँगा, अब उसकी मर्जी आया ना, हमारा काम क्या नहीं करता है। या अभी बोला खुतबा सुनो, हाँ जी सुन गया, उसके बाद आया ना मर्जी, वहां से नहीं भागेगा, वहां से कैसे भाग सकता है। तो अब आगे पैगंबर अकरम बयान फरमाते हैं, वला यबका मय्यतु फी शर्क़ वला फी गर्ब वला फी बर्द वला फी बहर इल्ला व मुनकिर व नकीर यसअलानिही अन विलायत अमीरुल मोमिनीन बअदल मौत। ये पूरी हदीस है पैगंबर अकरम। जब कब्र में पूछा जाएगा तो कहाँ पूछा जाएगा, वकूबा में या कहीं और नहीं, कोई भी मैयत न शर्क में, शर्क मतलब ईस्ट में, मशरिक में, वला फी गर्ब ना ही वेस्ट में मगरिब में, वला फी बर्र ना खुश्की में, खुश्की में कब्र होती है ना, वला फी बहर दरिया में भी नहीं। जहां भी मैयत होगी, चाहे वो मगरिब में हो, मशरिक में हो, खुश्की में हो या दरिया में उसे डाल दिया गया हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई मैयत है तो वो बाकी नहीं रहेगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, मगर ये कि मुनकिर और नकीर उससे सवाल करेंगे। यस अलान ही दोनों के दोनों आएंगे, मुनकिर और नकीर, और दोनों के दोनों सवाल करेंगे अन विलायत अली बादल मौत, अन विलायत अमीरुल मोमिनीन बादल मौत। यहाँ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज है, अली का नहीं। पहले में कहा गया विलायत अली यतसाअलूना अन्हा फी कुबूरिहिम, आखिर में बयान किया गया यतसाअलानिही अन विलायत अमीरुल मोमिनीन। वो पूछेंगे किसके बारे में, अमीरुल मोमिनीन की विलायत के बारे में। अमीरुल मोमिनीन का मतलब ही यही होता है
मोमिनों के अमीर, मोमिनों के मालिक, मोमिनों के आका, मोमिनों के सैयद और सरदार, सब कुछ वो हमारे हैं, जो भी मोमिन है उसके। अब इसका मतलब है मोमिन की अपनी मर्जी नहीं चलेगी। इसे कहा जाता है सच्ची हकीकत वाली मोहब्बत। आप दुनिया में भी देख लें, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत है, उसका एग्जाम्पल है, अलबत्ता इसे मजाजी कहा गया। मजाजी का मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, एक सिर्फ ट्रेलर जिसे आपको कह सकते हैं। मजाजी का मैं इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं मालूम है क्या है। हकीकत और ऐसे जैसे मजाजी का मतलब क्या होता है, जैसे इंसानों को कहा जाता है ना तू शेर है, मसलन वो शेर नहीं होता है। इंसान शेर के नाम पे खुश हो जाएगा, मुझे शेर का है। अभी दूसरा एंगल अगर देखा तो तुझे जानवर बताया है, शेर जानवर होता है तो उस पर खुश नहीं होगा। इसे कहा जाता है इंसान शेर है, तो इंसान शेर तो नहीं होता, मगर उसे क्या, इसे कहा जाता है मजाज। तो ऐसी मोहब्बत आप देखेंगे, अगर सच्ची मोहब्बत किसी को है, मसलन बेटे को बाप से सच्ची मोहब्बत, अगर बाप ने कहा कि बेटा यहाँ खड़े रहो और वो कह के भूल जाए, तो सच्ची मोहब्बत यह है कि बेटा उस जगह से ना हिले जब तक दोबारा ऑर्डर ना मिले बाप, जब तक दोबारा ऑर्डर ना मिले। अब ये नहीं 5 मिनट के बाद कि पापा भूल तो नहीं गया कहते और उसके बाद निकल गया, इसका मतलब मोहब्बत सच्ची नहीं है, थोड़ी बहुत मगर सच्ची नहीं है। तो सच्ची मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत का मतलब ये होता है कि अगर आका मौला ने जिससे मोहब्बत करते हैं उसने कह दिया कि यहाँ खड़े रहो, तो वहीं खड़े हैं जब तक दोबारा दूसरा ऑर्डर ना आए, जब तक दूसरी डिमांड ना आए। अगर बाप ने कहा कि एक गिलास पानी पिला दो, तो ये नहीं काम वाली कोई इधर बोला इधर आ बाबा को पानी ला के, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। तो ये घर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर है सच्ची मोहब्बत तो वहां फिर क्वेश्चन नहीं होता, तो यही मोहब्बत आती है अहले बैत के बारे में। अगर उनसे सच्ची मोहब्बत है तो उन्होंने जो कहा है वो करें, तब तो होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। करबला के मैदान में ज़ुहैर इब्न कैल, मैंने 2-3 मरतबा तज़किरा किया है और इसलिए ज्यादा कर रहा हूं ताकि याद रहे। ज़ुहैर इब्न कैल जब तक इमाम हुसैन से नहीं मिला था, करबला में पहुंचने से पहले किसी मंजिल के ऊपर मुलाकात हुई और वो ज्वाइन हो गए इमाम के लश्कर में, करबला में साथ है। जब तक इमाम हुसैन से ज्वाइन नहीं हुए थे, मिले थे, तब तक वो कहा जाता है उस्मानी थे। उस्मानी मतलब उस्मान वो कहते थे कि वो नाहक मारा गया, मजलूम मारा गया, और मुखालिफीन में थे अहले बैत के, अहले बैत के मुखालिफों में। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जब नूरे हिदायत मिला है, जैसा मैंने अर्ज किया था कि जिस वक्त इमाम का मैसेंजर गया है कि तुम्हें इमाम बुला रहे हैं, तो हाथ में निवाला यहाँ पर था और उसके बाद वो मुंह तक नहीं गया, वहीं गिर गया। वरना होता ना चलो खाना फिनिश करके चलता हूँ, जबकि शरीयत का हुक्म है, आपको मालूम है अगर खाना खा रहे हैं आप तो खाने को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। किसी का एहतराम कर रहे हैं तो खाना खाते हुए उठना भी नहीं चाहिए। एहतराम होता है ना, रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, कुरान पढ़ते वक्त खाना खाते वक्त। अब आप देखो यहाँ पर उन्होंने क्या, वो समझते हैं सच्ची मोहब्बत क्या है। इमाम ने बुलाया और उसके बाद वो निवाला में गिर गया। अब आइए करबला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा दे चुके, इमाम हुसैन सब नसीहतें कर चुके, कुछ नहीं है। ज़ुहैर कहने गए दुश्मन सामने गए, कोई बहुत बड़ा ज्यादा इलाका नहीं था। यजीदी लश्कर को खिताब किया, यजीदी लश्कर को नसीहत करना शुरू की। पूरी है वो फर्जंद ज़हरा है, फर्जंद रसूल है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम क्या करते हो, वो बहरहाल। इसी असना में आप जानते हो वो नसीहत कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से आदमी गया, ज़ुहैर कहने को कहा ज़ुहैर आ जाओ, अब इन पे नसीहत का असर कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है जिस वक्त ये पैगाम गया है इमाम हुसैन का ज़ुहैर इब्न कैल के पास, फौरन उसके बाद एक जुमला भी नहीं आगे कहा, एक लफ्ज भी आगे नहीं कहा। इमाम ने कहा नहीं आ जाओ, वहीं छोड़ के और आ गया वापस। वरना कहते नहीं फिनिश कर लो, 2 मिनट और बोल के आता हूं। नहीं, मालूम है जब इमाम बुलाता है तो उसके बाद आगे आप कुछ नहीं कर सकते, 1 सेकंड के लिए भी आगे नहीं बढ़ो। इमाम ने जब पहुंचा और आपका हुक्म आ गया इमाम का, तो वहीं रोक के अपनी बातें रोक के वापस आए। इमाम ने पुकार लिया है। अब सोचो
कितने दिनों में हिदायत मिल गई? जिसको हिदायत चाहिए वो सब, ऐसा नहीं है, पहले भी जानते थे मर्तबा क्या इमाम हुसैन का, और उसके बाद इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान की, और इस तरीके से कुर्बान की है कि जिसकी मिसाल बस वही है। लेकिन अज़ादारों, बहरहाल अय्याम अज़ा चल रहे हैं, और हम करबला की जितनी मुसीबतों को याद करें वो मुसीबतें हमारे लिए कम होती हैं। आपको मालूम है, जब जनाब यूसुफ को कुएं से निकाल कर काफिले वाले ले जा रहे थे, तो उन्हें पता चल गया कि अब मैं असीर हो चुका हूं, अब मैं इनका गुलाम हो चुका हूं, ये मुझे बेचेंगे, ये मुझे मार्केट में ले जाएंगे। जनाब यूसुफ को पता चल गया था। लेकिन आप देखेंगे जब उनकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कहीं पर जनाब यूसुफ को हथकड़ी नहीं लगेगी। जनाब यूसुफ के सामने उनकी माँ बहनें बेपर्दा नहीं थी। जनाब यूसुफ लुट पिट के नहीं जा रहे थे, भाइयों ने दगा की थी। जनाब यूसुफ खुद प्यासे और भूखे भी नहीं थे। काफिले वालों ने पकड़ने के बाद उन्हें ऐसा नहीं है कि खाना पानी नहीं दिया था, अच्छे और इज्जत के साथ में ले जा रहे थे। खूबसूरत इतने थे, काफिले वालों ने देख कर कहा कि इसके पैसे में अच्छे मिले। खूबसूरत बच्चा होता है तो खूब बेहतरीन पैसे मिलेंगे। कुरान ने भी तस्करा किया है कि ये सोचकर कि हमें बेहतरीन कीमत मिलेगी, लेके चलो। तो बाकायदा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ ले जा रहे थे जनाब यूसुफ। तारीख में मिलता है कि रास्ते में एक जगह पर जनाब यूसुफ को उनकी माँ की कब्र मिली। जिस रास्ते से वो जा रहे थे, जनाब यूसुफ को उनकी माँ की कब्र मिली। अपने को कब्र के ऊपर गिरा दिया। कब्र के ऊपर गिराने के बाद बयान करना शुरू कर दिया अपनी बचपने की यादें। माँ, आप मुझे इस तरीके से मेरे साथ खेलती थी, आप मुझे इस तरीके से प्यार करती थी, आप मुझे इस तरीके से खाना खिलाती थी, आप मुझे इस तरीके से सुलाती थी, आप मेरी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती थी। ये कहते जाते थे और रोते जाते थे। और देखो मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ गई है कि मेरे भाइयों ने मुझे कुएं में फेंक दिया है, और ये काफिले वाले अब ले जाकर मुझे कहीं पर भी बेच डालेंगे। आप समझते हैं, मैंने बयान कर दिया और आपने सुन लिया। जनाब यूसुफ ने जो बैन किए हैं अपनी माँ की कब्र के ऊपर, उसको बयान किया गया तारीख में अलग-अलग। मगर जरा सोचो, यही मंजर जब जनाब सैयद सज्जाद के साथ आया, जब मख्तल से गुजारा जा रहा था जनाब सैयद सज्जाद को, तो जनाब सैयद सज्जाद ने जब अपने बाबा के पामाल लाशे को देखा है, आपको मालूम है टुकड़े टुकड़े बदन हो चुका था इमाम हुसैन का, और जब दफन किया गया है तो ऐसा नहीं है कि मैयत को, जो लोग मैयत उठाते हैं, मालूम है कि मैयत को अगर एक जगह से दो आदमी पकड़ लें सर और पैर की तरफ से तो पूरी मैयत उठ जाती है। मगर आपको मालूम है कि इमाम हुसैन की मैयत को किस तरीके से कहा गया? एक चटाई के ऊपर, एक मैट के ऊपर रखा गया टुकड़ों को, और उसके बाद कब्र में उतारा गया है। तो अब ज़रा सोचो, जब जनाब सैयद सज्जाद असीरी के आलम में, उन्हें मालूम है यूसुफ के लिए इतनी बड़ी मुसीबत है, मगर हथकड़ियाँ नहीं हैं, तोप नहीं है, बेड़ियाँ नहीं हैं, माँ बहनें बेपर्दा नहीं हैं, मगर जनाब सैयद सज्जाद के ऊपर क्या गुजरी होगी जब अपने बाप के जनाजे को देखा होगा, और ख़ुद के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, सामने ज़ैनब में कुलसूम हैं जिनके सरों के ऊपर चादरें नहीं हैं। एक मरतबा बैन करना शुरू कर दिए, बाबा के कटे हुए गले को अपने जानों के ऊपर रखकर बोसे देना शुरू कर दिए। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आल मुहम्मद, हमारी इस मुख़्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हुसैन मज़लूम की अज़ादार दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद, उनकी जान माल इज़्ज़त और हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमें बेहतर तरीके से इखलास के साथ हमें इमाम हुसैन की अज़ादारी मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम जहाँ दुनिया में भी कहीं भी रुकावटें हैं अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला के लिए, उन रुकावटों को दूर फरमा। परवरदिगार हम सबको जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार आलम हमें सच्चे और हकीकी इमाम हुसैन के अज़ादारों में शुमार फरमा। या अल्लाह, हमारी अज़ादारी से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को राज़ी व खुशनूद फरमा। इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब उनके नासरीन और मददगारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि